Okay, so student, last lecture we were discussing about wagering agreements, and yesterday I stopped my lecture after discussing the concept of chit fund and commercial transaction or share market transactions. You can see on the screen transactions resembling मतलब they are as good as wagering transactions. आपको उनका नेचर वेजरिंग ट्रांजैक्शंस का लगेगा, लेकिन हमारा इंडियन कॉन्ट्रैक्ट एक्ट ने उसे एक्सप्रेसली डिक्लेयर्ड एज वॉइड ऐसा नहीं कहा है. इट इज नॉट एक्सप्रेसली डिक्लेयर्ड एज वॉइड. ओके, दैट मीन्स it is valid. Okay, so we are discussing right now, students, those transactions which are valid in nature even though they are wagering transactions, as good as wagering transactions, I'm sorry. Okay, so I hope you got the concept of chit fund. Okay, chit fund system बहुत ही फेमस है. Okay, उसको हम लोग कभी कभी BC भी बोलते हैं. Okay, बिजनेस चिट फंड. तो शॉर्टकट में समटाइम्स वी कॉल्ड द वर्ड BC ऑल्सो. आपने कभी सुना भी होगा वो. तो चिट फंड का आइडिया ऑलरेडी हमने बता दिया कि एक ग्रुप ऑफ पीपल आएंगे, 10-12 लोग. दे विल फॉर्म अ ग्रुप, दे विल कंट्रीब्यूट इक्वल अमाउंट एवरी मंथ, एंड जो पैसा जमा होगा वो लकी ड्रॉ निकाल कर जिसका नाम आएगा लकी विनर का, the whole amount is paid to you. Okay, and this is for every month. So one who is a lucky will get the amount first, so that he can use it for other purpose also, like he can invest in business, or he can invest somewhere other, or he can use it for some other work. So in practical life it is very famous, but कुछ न्यूज़ वगैरह भी हम कभी कभी पढ़ते हैं कि चिट फंड में घोटाला हुआ, चिट फंड मैनेजर पैसे लेके भाग गया, and so on. So that's entirely different matter. बच्चों, सेकेंड ट्रांजैक्शन जब हमने डिस्कस किया तो आई कंपेयर्ड विद समथिंग अदर थिंग्स ऑल्सो. यहाँ पे जो शेयर मार्केट ट्रांजैक्शंस बोले हैं ना बच्चों, जहाँ पर और एनी कमर्शियल ट्रांजैक्शन, नॉट ओनली शेयर मार्केट ट्रांजैक्शन, एनी कमर्शियल ट्रांजैक्शन, ट्रेडिंग जिसको हम कहते हैं, वेयर द इंटेंशन इज टू गिव द डिलीवरी ऑफ गुड्स और शेयर्स, or where the intention is to take delivery of goods or shares. Okay, where the intention is not to speculate. Try to remember that point, speculation. But why it is different from speculation? Because speculation में intraday transaction होता है and intention is not to take delivery of goods or shares. Just price के difference में लोग खेलते हैं. So that is speculation, and that is of course wagering in nature. But यहाँ पर commercial transaction और share market transaction जहाँ पर delivery of goods and shares से settlement होता है बच्चों, that is valid transaction that do not amount to wager. Very simple points. So yesterday I have discussed these 2 points. Third point again I said it's a repetition. हमने ऊपर पढ़ा था, देखो कि बीच में अचानक वैलिड आंसर आ गया था. एनी गेम ऑफ स्किल और एथलेटिक कंपटीशन जहाँ पे बच्चों विनर जब जीतता है, बराबर, पर्सन जो विनर डिक्लेयर होता है, ही यूजेस हिज टैलेंट एंड स्किल. वो अपना टैलेंट, स्किल, इंटेलिजेंस कुछ भी बोल सकते हो, इसका इस्तेमाल करके जब कोई क्रॉसवर्ड पजल, पिक्चर कंपटीशन, एथलेटिक कंपटीशन बच्चों जीतता है, तो आप उसको वेजरिंग इन नेचर नहीं कह सकते. And when I said wagering in nature नहीं है, so you can treat this contract as normal contracts, normal agreement, and hence it is valid. I hope you get the point. But I said here, but if the same thing is done with the intention of, can you complete that word? With the intention of what? कल का लेक्चर किसी को याद है? With the intention of
I want that special word. With the intention of, बहुत लोग टाइप कर रहे हैं, so I am waiting for the answer. Gambling, very good आंसर. पहला आंसर लांस का ही आया है. गैम्बल, गैम्बलिंग, भाविका ने भी लिखा है, अनिकेत ने भी लिखा है, फिजा ने भी लिखा है, मिताली ने भी लिखा है. वेरी गुड. Same thing when you do with the intention of gambling. तो बच्चों, it becomes wagering in nature. Very simple. And when it becomes wagering in nature, तो कॉन्ट्रैक्ट का जो enforceability है बच्चों, वो that comes to an end. It becomes void. Okay, so I read that point number 3 again, very easy. मैंने कहा था इसमें जो 1000, हमने 500, 55 lakhs ऐसे कुछ अमाउंट्स पढ़े थे कि नहीं, याद होगा ना आपको? That is as per Price Competition Act. So don't consider that angle. Okay, वो read नहीं करेंगे तो भी चलेगा. But first 3 लाइन में read करता हूँ. Crossword puzzles, picture competition, athletic competition where prizes are awarded on the basis of skill, कौशल जिसको हम कहते हैं, and intelligence are the game of skill, and hence such competitions are valid. Are the game of skills. कल हमने क्या पढ़ा था? आर लॉटरी. जहां लॉटरी आ जाए बच्चों, इट्स नॉट गेम ऑफ चांस, इट इज गेम ऑफ स्किल. जहां लॉटरी आ जाए इट बिकम्स गेम ऑफ चांस. बराबर है, गैम्बलिंग नेचर आ जाता है उसमें, विनिंग लूजिंग वाला आ जाता है. तो ऐसे केस में बच्चों दैट बिकम्स वॉइड. बट यहाँ पे देखो, हेंस सच कॉम्पिटिशंस आर वैलिड. उसके बाद जो 2 लाइन लिखा है वो हमने कल भी पढ़ा था, तो ये आप छोड़ देंगे तो भी चलेगा. 2 लाइन, जस्ट लीव इट. एंड बच्चों, द नेक्स्ट एंड वेरी इंपॉर्टेंट पॉइंट विच वी आर कमिंग टू द कंक्लूजन ऑफ दिस यूनिट नंबर 3 इज अ कॉन्ट्रैक्ट ऑफ इंश्योरेंस. अब बच्चों, आपके लिए बिल्कुल नया नहीं है कॉन्ट्रैक्ट ऑफ इंश्योरेंस को. बच्चों, इट्स वेरी फेमस. बराबर है. इसको एक्चुअली हम लोग rather than using the word wagering contract, I must use the word contingent contract. Contract of insurance is not wagering. It's not wagering agreement. In fact, it is contingent contract. And when I use the word contingent, तो बच्चों contingent का मतलब क्या? Yes, anyone? Accounts तो पढ़ा ही होगा आपने. Contingent liability कभी सुना होगा आपने वर्ड. जब हम बोलते हैं contingency, contingent, तो उससे आई थिंक मीनिंग तो क्लियर होगा बच्चों. अभिशंकर, फ्यूचर में, नॉट एग्जैक्टली. प्रिया, माइट बिकम वॉइड. नहीं, ये भी फिलहाल करेक्ट नहीं लग रहा है. जब हम यूज करते हैं ना वर्ड कॉन्टिंजेंट, तो कॉन्टिंजेंट का मतलब इट मे और मे नॉट हैपन, एंड इसकी होना या नहीं होना डिपेंड्स अपॉन फ्यूचर इवेंट. ओके, जैसे कि अभी प्रिया ने लिखा फ्यूचर इवेंट. ओके. अब बच्चों, कॉन्ट्रैक्ट ऑफ इंश्योरेंस, जैसे कि मैं एक एग्जांपल देता हूँ, देखो ना. इंश्योरेंस कंपनी के साथ मैंने कॉन्ट्रैक्ट किया, या वाइस वर्सा, इंश्योरेंस कंपनी ने मेरे साथ कॉन्ट्रैक्ट किया, कॉन्ट्रैक्ट ऑफ इंश्योरेंस. एंड उसमें हमारा कॉन्ट्रैक्ट क्या था कि 1 साल में अगर 1 साल के अंदर 1 साल के अंदर अगर मेरा घर जल गया, if fire takes place and if my house is destroyed by fire, insurance company will pay me compensation. Insurance company will pay me compensation. This is what a contract of insurance मेरे and insurance company के बीच में हुआ है. 1 साल में अगर घर जल गया तो इंश्योरेंस कंपनी विल पे मी कॉम्पनसेशन, एंड अगर नहीं जला तो मैं उनको पे करूंगा. ऐसा है क्या? ये क्या बेटिंग चल रहा है क्या? टेल मी. नॉट अ बेटिंग, इट्स प्योरली अ कॉन्ट्रैक्ट ऑफ इंश्योरेंस
जहां पर बच्चों मैं प्रॉपर्टी इंश्योर कर रहा हूँ इंश्योरेंस कंपनी के साथ बाय पेइंग अ प्रीमियम, बाय पेइंग अ मंथली प्रीमियम। तो इसका मतलब 1 साल के अंदर घर जला तो कॉन्ट्रैक्ट इन फोर्स हो जाएगा। एंड घर नहीं जला 1 साल के अंदर, 1 साल के बाद जला, तो कैन आई क्लेम मनी फ्रॉम इंश्योरेंस कंपनी? कैन आई क्लेम मनी फ्रॉम इंश्योरेंस कंपनी? 1 साल के बाद जला तो नो, आई कैनॉट क्लेम। दैट मीन्स कॉन्ट्रैक्ट बिकम्स वॉइड। 1 साल के अंदर घर जल गया तो मैं कॉम्पनसेशन क्लेम कर सकता हूं एज अ मैटर ऑफ राइट। आई होप यू गेट द पॉइंट। एंड 1 साल के बाद जला तो बच्चों आई कैनॉट रिकवर एनी अमाउंट फ्रॉम इंश्योरेंस कंपनी। When I cannot recover, that means contract becomes void. Okay, so basically generally अगर हम बात करें, if I ask you generally contingent contracts void या valid, what will be your first answer? Generally it is valid. And if I ask you valid, yes, you are right, everyone is giving right answer. And if I ask you another question, wagering agreements are generally void. So this is a very great difference, a very big difference between contingent contract and wagering agreement. आप ऐसा बोल सकते हो। ओके, सो कॉन्ट्रैक्ट ऑफ इंश्योरेंस बच्चों, इफ यू कैन रिमेम्बर ओसीएम वगैरह में आपने पढ़ा होगा, या मे बी आपने सीए या सीएस के एंगल में भी कुछ पढ़ा होगा। कॉन्ट्रैक्ट ऑफ इंश्योरेंस इज बेस्ड ऑन द प्रिंसिपल ऑफ, कैन यू टाइप दैट वर्ड? Contract of insurance is based on the principle of utmost good faith. अभिशंकर, आप बहुत ही बढ़िया आंसर दे रहे हो, मुझे बहुत अच्छा लगा। utmost good faith, परफेक्ट। यानी कि बच्चों इसमें व्यक्ति जो इंश्योरेंस ले रहा है उसने सारी ट्रू इंफॉर्मेशन इंश्योरेंस कंपनी को प्रोवाइड करनी है। Okay, because contract is based on utmost good faith. And if you are providing false information to insurance company, and later on insurance company, if they get the information that you have given false information to them, or they come to the knowledge that you have given false information, बच्चों, they may avoid claim. तो आपको क्लेम देने से मना कर सकते हैं, because you have not followed the principle. So I am not teaching OCM here. I'm just trying to get you have the idea of contract of insurance. Okay, bachcha. So let us read what is given. Only 2 line is given. What is there here? Notes दिख रहा है बच्चों? पहले जरा yes no में आंसर दे दो। नोट्स दिख रहा है ना सबको? नोट्स दिख रहा है बच्चों सबको? ओके ओके। हाँ बच्चों देखो, अ कॉन्ट्रैक्ट ऑफ इंश्योरेंस इज अ टाइप ऑफ, जिनके पास नोट्स है आप अंडरलाइन करो, कॉन्टिंजेंट कॉन्ट्रैक्ट। क्लियर कट लिखा है बच्चों। Contingent contract is nothing but contract to do or not to do something if some event collateral to it happens or does not happens. आप बोलेंगे सर क्या बोल रहे हैं, यहाँ कोई लिखा नहीं है। नो बच्चों, आई एम जस्ट डिफाइनिंग कॉन्टिंजेंट कॉन्ट्रैक्ट। लिखा नहीं है बट आई एम डिफाइनिंग। ओके, सो कॉन्टिंजेंट कॉन्ट्रैक्ट इज अ कॉन्ट्रैक्ट टू डू और नॉट टू डू समथिंग if event collateral to it happens or does not happens. इंश्योरेंस कंपनी मुझे कॉम्पनसेशन देने के लिए तभी लायबल है when the fire will take place within a year. If fire does not take place within a year, insurance company is under no obligation to pay me the compensation. I hope you get my point. ओके, कॉन्टिंजेंट कॉन्ट्रैक्ट का नेचर बता रहा हूं मैं, मीनिंग बताने की कोशिश कर रहा हूं। एंड लिखा भी है बच्चों देखो,
It is a type of contingent contract and is valid. इसलिए मैंने पहले पूछा आपको कि जनरली आप जब आंसर देंगे कॉन्टिंजेंट कॉन्ट्रैक्ट का, तो आप हमेशा आंसर देंगे इट इज वैलिड under law, and these contracts are different from wagering agreements. So don't get mixed up. Don't get mixed up. Contingent contracts and wagering agreements are not one and the same. वो लगेगा दोनों का नेचर ऐसा हल्का सा लगेगा कि दोनों फ्यूचर इवेंट पे डिपेंड है, मैं मानता हूँ उस बात को, लेकिन बच्चों both the agreements are different from each other. आणि ये बताने के लिए बच्चों there is a distinction given specially, ओके, जिसे हम पढ़ना चाहेंगे. सीए स्टूडेंट्स मार्क करो, वेरी इंपॉर्टेंट डिस्टिंक्शन फ्रॉम एग्जामिनेशन पॉइंट ऑफ व्यू. आ सकता है लिखने को आपको ये 5 मार्क का. एंड सीए स्टूडेंट आप हर एक पॉइंट को एकदम 100% अंडरस्टैंड कर लो, कॉन्सेप्ट क्लियर रखो, ओके, ताकि एमसीक्यूज में कुछ क्वेश्चन पूछा तो यू विल बी एबल टू गिव द आंसर. तो स्टूडेंट लेट अस डिस्कस वन बाय वन. बेसिस क्या है, मीनिंग, ओके. It is contract. What is contract of insurance? Basically, it is a contract to indemnify the loss. अब यहाँ पर आकर मैं बच्चों फिर से पूछना चाहूंगा, ओसीएम स्टूडेंट्स ऑलमोस्ट सभी बच्चों ने ओसीएम तो पढ़ा ही है, किसी को ऑप्शन में था नहीं. इंडेमनीफाई करना मतलब क्या? इंडेमनीफाई, आर यू श्योर इट्स रिकवर? आपने पढ़ा होगा लॉ ऑफ इंडेमनिफिकेशन. ओम ने लिखा है कॉम्पनसेट. इंडेमनीफाई मतलब अभिशंकर इज नॉट आइडेंटिफाई. आइडेंटिफाई मतलब कुछ पहचान करना, ऐसा. नो, इट्स नॉट आइडेंटिफाई. ओम ने कुछ हद तक सही लिखा है, बट मैं फिर भी पूछूंगा, आपने सुना था कि नहीं एसवाईजेसी लेवल पर ये वर्ड इंडेमनीफाई द लॉस? मतलब बच्चों इसका मतलब है, कुछ बच्चे टाइप कर रहे तो मैं वेट करता हूँ पहले उनके आंसर का. एक्चुअली इंडेमनीफाई मीन्स जितना लॉस हुआ है उतने ही तुमको कॉम्पनसेट किया जाएगा. जितना लॉस हुआ है उतना ही कॉम्पनसेट किया जाएगा, उतना ही मिलेगा आपको. आप समझे कि नहीं मैंने क्या कहा? ओके, दैट इज द वर्ड इंडेमनीफाई. सो बेसिकली इंश्योरेंस कंपनी हमसे जब कॉन्ट्रैक्ट करती है तो हमसे प्रीमियम लेकर हमको क्या प्रॉमिस करती है कि फ्यूचर में तुम्हारा जितना लॉस होगा वो लॉस की हम भरपाई करके देंगे. That is why contract of insurance is also based on the principle of indemnification. सुना होगा आपने. If it is based on utmost good faith, तो इसका और एक प्रिंसिपल है लॉ ऑफ इंडेमनिफिकेशन. ओके, इंडेमनीफाइड, आपके जितने लॉसेस होंगे वो सबको उसका आई वी विल टेक केयर ऑफ. इंश्योरेंस कंपनी आपको इतना एश्योरेंस देता है, तुम्हारा जो लॉस होगा वो लॉस का हम जिम्मेदारी लेते हैं. दैट इज इंडेमनिफिकेशन. ओके, ओके, सो आई विल कंटिन्यू. तो बच्चों एक तरह से आप बोल सकते हो कॉन्ट्रैक्ट ऑफ इंश्योरेंस एंड वेजरिंग एग्रीमेंट, ऐसा डिफरेंस लिखा है. बट आप कॉन्टिंजेंट कॉन्ट्रैक्ट एंड वेजरिंग एग्रीमेंट ऐसा भी डिफरेंस को अंडरस्टैंड कर सकते हो. उसमें कॉन्ट्रैक्ट ऑफ इंश्योरेंस इज द एग्जांपल. कॉन्टिंजेंट कॉन्ट्रैक्ट का बेस्ट एंड क्लासिकल एग्जांपल क्या है? कॉन्ट्रैक्ट ऑफ इंश्योरेंस. पढ़ाई के लिए मेहनत तो सब करते हैं, लेकिन स्मार्ट स्टडी कौन करता है? प्री एग्जाम ऐप के साथ बनाइए अपनी तैयारी सुपर स्मार्ट. प्री एग्जाम ऐप देता है वाइड रेंज के एग्जाम्स की तैयारी, जैसे जी, नीट, कैट, सीए फाउंडेशन, सीएस सीट, बैंकिंग, रेलवे, एसएससी, एमबीए एंट्रेंस, एसवाईजेसी, कॉम, टीवाईबी कॉम और भी बहुत कुछ. चैप्टर वाइज टेस्ट्स एंड मॉक टेस्ट्स, डिटेल्ड परफॉर्मेंस एनालिसिस, और अब तैयारी होगी एकदम परफेक्ट. कहीं भी कभी भी पढ़ाई करें
और एक विशाल क्वेश्चन बैंक आपकी तैयारी को बनाए आसान। इंस्टेंट इवैल्यूएशन से तुरंत जानिए अपनी परफॉर्मेंस और पाएं पर्सनलाइज्ड फीडबैक। तो अब देरी किस बात की, प्री एग्जाम ऐप डाउनलोड करें और अपने नाम से रजिस्टर्ड करें और एक विशाल क्वेश्चन बैंक बिल्कुल फ्री और अपनी सफलता की कहानी लिखें। लिंक डिस्क्रिप्शन में है। प्री एग्जाम ऐप स्मार्ट चलो, तैयारी का साथी। तो राइट हैंड साइड में पढ़ो बच्चों, वेजरिंग एग्रीमेंट का वैसे भी हमने मीनिंग पढ़ा था। इट इज अ प्रॉमिस टू पे मनी एंड मनी इज वर्थ, याद आया? प्रॉमिस टू पे मनी और मनी इज वर्थ ऑन हैपनिंग और नॉन हैपनिंग ऑफ अनसर्टन इवेंट। हैपनिंग और नॉन हैपनिंग ऑफ अनसर्टन इवेंट, बेटिंग जिसको हम कहते हैं। ओके, चलो वो तो मीनिंग हमने ऑलरेडी डिस्कस किया था। लेट अस डिस्टिंग्विश ऑन द बेसिस ऑफ सेकंड पॉइंट, कंसीडरेशन। बताने की जरूरत नहीं कंसीडरेशन का मतलब क्या है, एवरीवन नोज दैट। तो कॉन्ट्रैक्ट ऑफ इंश्योरेंस में पढ़ो क्या लिखा है। द क्रक्स ऑफ इंश्योरेंस कॉन्ट्रैक्ट इज म्यूचुअल कंसीडरेशन। द क्रक्स ऑफ कॉन्ट्रैक्ट इज म्यूचुअल कंसीडरेशन। बच्चों, इंश्योरेंस कॉन्ट्रैक्ट का क्रक्स, व्हेन आई यूज द वर्ड क्रक्स मतलब प्रिसाइजली, शॉर्टकट में बोला जाए तो इंपॉर्टेंट पॉइंट क्या है इंश्योरेंस कॉन्ट्रैक्ट का, सबसे मेन पॉइंट, अहम पॉइंट क्या है कि इसमें म्यूचुअल कंसीडरेशन है। नाउ हाउ यू आर गोइंग टू डिफाइन म्यूचुअल कंसीडरेशन? तो मैं वापस एग्जांपल लूंगा। बाय पेइंग प्रीमियम, यानी मैं कंसीडरेशन दे रहा हूं इंश्योरेंस कंपनी को, आई एम पेइंग प्रीमियम एंड अगेंस्ट माय प्रीमियम what I am going to receive if tragedy happens, what I will be receiving something in return, compensation. तो प्रीमियम के बदले कॉम्पनसेशन। इंश्योरेंस कंपनी के एंगल सोचो, कॉम्पनसेशन के बदले प्रीमियम। तो बच्चों समथिंग इन रिटर्न हुआ कि नहीं हुआ? दोनों के लिए समथिंग इन रिटर्न है कि नहीं? ओके, इसलिए उन्होंने जब दोनों के लिए इसमें समथिंग इन रिटर्न है, इसलिए म्यूचुअल वर्ड लिखा है, म्यूचुअल कंसिडरेशन, आपस में एक दूसरे के लिए कंसिडरेशन। ओके, बट बच्चों वेजरिंग एग्रीमेंट में आपको पता ही है कि यहाँ कंसिडरेशन नाम की कोई चीज ही नहीं है। इट इज जस्ट फॉर द सेक ऑफ गैम्बलिंग ऑफ मनी, विनिंग लूजिंग। बरोबर है, मैंने पहले भी कहा था कि जो इवेंट पर ये लोग गैम्बल करते हैं, इवन उस इवेंट पे दे आर नॉट, पार्टीज आर नॉट इंटरेस्टेड। बरोबर है, दे आर जस्ट फॉर द सेक ऑफ गैम्बलिंग ऑफ मनी। बरोबर, यानी गैम्बल को कंसिडरेशन नहीं कहा जाता, फिर अनलॉफुल हो जाएगा ना वो कंसिडरेशन। ओके, गैम्बलिंग जहां नेचर आ गया बच्चों, वहां पे इनडायरेक्टली मैं तो ऐसा कहूंगा कि आपने वो पढ़ा है इसलिए वो लैंग्वेज में बोलता हूँ, कहीं ना कहीं बच्चों ये अनलॉफुल कंसिडरेशन में चला जाएगा। राइट हैंड साइड में पढ़ते हैं क्या लिखा है, देखो वेजरिंग एग्रीमेंट में, देयर इज नो कंसिडरेशन बिटवीन टू पार्टीज। है कि नहीं? कोई कंसिडरेशन है ही नहीं। देयर इज जस्ट अ गैम्बलिंग फॉर मनी। गैम्बल मतलब या तो तू जीतेगा मैं हारेगा, मैं जीतेगा तू हारेगा। बराबर है, इससे ज्यादा वेजरिंग एग्रीमेंट में कुछ नहीं होता है। तीसरा पॉइंट, आई थिंक दिस विल मेक यू मोर क्लियर बिटवीन दिस टू कॉन्सेप्ट, इंश्योरेबल इंटरेस्ट। बच्चों यू टेल मी, कॉन्ट्रैक्ट ऑफ इंश्योरेंस में व्हाट इज माय सब्जेक्ट मैटर? फायर इंश्योरेंस में व्हाट इज माय सब्जेक्ट मैटर? टेल मी, किसको लेकर मैंने इंश्योरेंस किया है इंश्योरेंस कंपनी के साथ? टाइप करो एग्जांपल में। नो 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 नो, ओम, प्रिया, गुड्स, हाउस प्रॉपर्टी, घर, है कि नहीं? घर या गुड्स वो मेरा सब्जेक्ट मैटर है इंश्योरेंस कॉन्ट्रैक्ट में। बरोबर है, या लाइफ इंश्योरेंस की बात करो, तुम्हारी लाइफ इज सब्जेक्ट मैटर। एंड बच्चों आपको लगता नहीं मैंने घर का इंश्योरेंस निकाला है, गुड्स का इंश्योरेंस निकाला है, मेरे लाइफ का इंश्योरेंस निकाला है,
इसका मतलब ये गुड्स, घर एंड मेरे लाइफ में मेरा इंश्योरेबल इंटरेस्ट है कि नहीं है? मुझे मेरा इंश्योरेबल इंटरेस्ट है कि नहीं इसमें? है कि नहीं? मेरे गुड्स कहीं जल न जाए, घर कहीं जल न जाए, इसकी चिंता है मुझे, एंड दैट इज वाई मैंने इंश्योरेंस निकाला है. दैट मीन्स आई एम इंटरेस्टेड, आई एम हैविंग इंश्योरेबल इंटरेस्ट इन द लाइफ और प्रॉपर्टी जिसका मैंने इंश्योरेंस निकाला है. बट बच्चों, शर्त जब लगती है तो शर्त लगाने वाले दो लोग, क्या सब्जेक्ट मैटर में उनका कोई इंश्योरेबल इंटरेस्ट रहता है क्या? सब्जेक्ट मैटर को लेके कोई इंश्योरेबल इंटरेस्ट रहता है क्या? नहीं. मैंने कहा ना, दे आर जस्ट थिंकिंग अबाउट विनिंग एंड लूजिंग. वो किस सब्जेक्ट मैटर को लेकर कॉन्ट्रैक्ट कर रहे हैं उससे उनको कोई लेना देना नहीं. दे आर नॉट एट ऑल हैविंग इंश्योरेबल इंटरेस्ट. सो राइट हैंड साइड में आप पढ़ो क्या लिखा है वेजरिंग एग्रीमेंट में. देयर इज नो प्रॉपर्टी इन केस ऑफ वेजरिंग एग्रीमेंट. देयर इज बेटिंग ऑन अदर्स लाइफ एंड प्रॉपर्टीज. बराबर है. सो यहाँ पर कोई इंश्योरेबल इंटरेस्ट नाम की चीज रहती नहीं है. बेटिंग के चक्कर में बच्चों कोई भी इंश्योरेबल इंटरेस्ट यहाँ प्रूव नहीं होता है. कॉन्ट्रैक्ट ऑफ इंडेमनिटी. बच्चों मैंने कहा था एक और कॉन्ट्रैक्ट आएगा, कॉन्ट्रैक्ट ऑफ इंडेमनिटी, कॉन्ट्रैक्ट ऑफ गारंटी, कॉन्ट्रैक्ट ऑफ एजेंसी. तो कॉन्ट्रैक्ट ऑफ इंडेमनिटी से क्या पता चलता है कि इंश्योरेंस कंपनी आपके साथ कॉन्ट्रैक्ट कर रहा है टू इंडेमनीफाई योर लॉसेस. आपका जितना भी लॉस होगा उसकी भरपाई करने के लिए जो कॉन्ट्रैक्ट किया जाता है, दैट इज कॉन्ट्रैक्ट ऑफ इंडेमनिटी. ओके, इंडेमनिटी. तो बच्चों पढ़ते हैं क्या लिखा है, देखो. एक्सेप्ट लाइफ इंश्योरेंस, द कॉन्ट्रैक्ट ऑफ इंश्योरेंस इंडेमनिफाइज insured person against loss. Okay, except life insurance, the contract of insurance indemnify the insured person against loss. बच्चों I will explain this in detail. इंश्योरेंस दो प्रकार के होते हैं, if you know that. एक होता है लाइफ इंश्योरेंस एंड दूसरा, do you know? I'm not testing your knowledge, but just बताओ. एक लाइफ इंश्योरेंस होता है तो दूसरा जनरल इंश्योरेंस होता है. उत्कर्षा वेरी गुड. जनरल इंश्योरेंस, पूजा ने भी सही आंसर दिया. जनरल इंश्योरेंस मतलब क्या बच्चों? अदर देन लाइफ. आपने सुना होगा कि हमारे व्हीकल का इंश्योरेंस होता है, घर का इंश्योरेंस होता है, ज्वेलरी का इंश्योरेंस होता है, सुना होगा आपने. गुड्स का इंश्योरेंस होता है. तो अदर देन लाइफ जो भी इंश्योरेंस होता है ना बच्चों, वी कॉल इट एज जनरल इंश्योरेंस. एंड जनरल इंश्योरेंस इज द इंश्योरेंस which is based on contract of indemnity. तो आप बोलेंगे सर देन व्हाई नॉट लाइफ इंश्योरेंस? तो बच्चों लाइफ इंश्योरेंस में इंश्योरेंस कंपनी cannot give you insurance of your life, they only give you assurance. There's a difference. Assurance, किसी भी व्यक्ति के लाइफ जब जाती है तो लॉस कितना हो गया परिवार को, that cannot be calculated in monetary terms. What do you think? मैं सही कह रहा हूं बच्चों? कोई भी घर का व्यक्ति मरता है तो उसका मरने के बाद उसका हम लोग थोड़ी रेट निकालेंगे कितने लेवल का लॉस हुआ है परिवार को. इट्स नॉट पॉसिबल. गाड़ी का हम निकाल सकते हैं, मेरी 10 लाख की गाड़ी जल गई तो 10 लाख मेरा इंश्योरेबल इंटरेस्ट, उतना मेरा लॉस मुझे मिल जाएगा. गुड्स कितने का जल गया? 2 लाख का जल गया. लेकिन हम लाइफ का बोलते हैं क्या? 10 लाख की लाइफ चली गई. कभी सुना है ऐसा? 2 करोड़ की लाइफ चली गई. अरे क्या लाइफ थी, 2 करोड़ की चली गई. ऐसा कभी सुना है आपने? तो बच्चे इसलिए कॉन्ट्रैक्ट ऑफ इंडेमनिटी जो है दैट कवर्स ओनली जनरल इंश्योरेंस. ओके, आप अपना नॉलेज बढ़ाइए बच्चे ये सब सुनकर. इट कवर्स ओनली जनरल इंश्योरेंस.
एंड दैट इज वाई डिफरेंस पढ़ते समय आपको शब्द आया, देखो, एक्सेप्ट लाइफ इंश्योरेंस, कॉन्ट्रैक्ट ऑफ इंश्योरेंस इंडेमनीफाइज इंश्योर्ड पर्सन अगेंस्ट लॉस। बच्चों मैं आप सभी से पूछ रहा हूँ, हैव यू अंडरस्टूड माय पॉइंट नंबर 4, कॉन्ट्रैक्ट ऑफ इंश्योरेंस का स्पेशल पॉइंट? यस, कंफ्यूज तो नहीं हो रहा ना सब लोग? अच्छा, कोई हो रहा है तो डाउट पूछेंगे। हाँ बच्चों, आज सैवियो नहीं है क्या लेक्चर में? सैवियो एब्सेंट है? ओके, सो बच्चों राइट हैंड साइड पढ़ो क्या लिखा है वेजरिंग एग्रीमेंट में। लूजर हैज टू पे फिक्स्ड अमाउंट ऑन हैपनिंग ऑफ अनसर्टन इवेंट। डू यू एग्री विद दिस? बेटिंग हार गया, चलो पैसे दे दो। बेटिंग हार गया तो पैसे दे दो। लूजर हैज टू पे फिक्स्ड अमाउंट। इसमें कॉन्ट्रैक्ट ऑफ इंडेमनिटी का सवाल ही नहीं आता है। इनफैक्ट कॉन्ट्रैक्ट ऑफ इंडेमनिटी डज नॉट अप्लाई टू वेजरिंग एग्रीमेंट्स, मैं तो ऐसे कहूंगा। इज दैट ओके स्टूडेंट? चलो पॉइंट नंबर 5, इन्फोर्सिबिलिटी क्या कहती है? वेरी सिंपल, ये ज्यादा पढ़ने की जरूरत नहीं है। इट इज वैलिड एंड इन्फोर्सेबल, मैटर खत्म। कॉन्टिंजेंट कॉन्ट्रैक्ट्स आर, कॉन्ट्रैक्ट ऑफ इंश्योरेंस इज वैलिड एंड इन्फोर्सेबल। एंड व्हाट अबाउट वेजरिंग एग्रीमेंट? इट इज void and unenforceable agreement. तो आई थिंक ये एनफोर्सेबिलिटी आपको ऑलमोस्ट बाय हार्ट है। पॉइंट नंबर 6 पर ध्यान दो, प्रीमियम। बच्चों यू नो अगेंस्ट अवर कॉन्ट्रैक्ट ऑफ इंश्योरेंस, लाइफ इंश्योरेंस में भी हमें इंश्योरेंस कंपनी को हर महीने हर साल क्या पे करना पड़ता है? क्या पे करना पड़ता है? कंसिडरेशन के तौर पर मैं इंश्योरेंस कंपनी को क्या पे करूंगा? प्रीमियम। अपना शेयर प्रीमियम वाला प्रीमियम नहीं है, वी कॉल इट एज अ प्रीमियम। और वो प्रीमियम जो इंश्योरेंस कंपनी कैलकुलेट करती है, बरोबर, वो कैलकुलेशन का एक बेस होता है, साइंटिफिक बेस होता है, बरोबर है, कि रिस्क कैसे कैलकुलेशन की जाए। किसी के लाइफ की रिस्क कितनी है उसके एज पर डिपेंड है, उसके हेल्थ रिपोर्ट पर डिपेंड है कि नहीं, उसके हिसाब से बच्चों को कैलकुलेशन होता है। एंड एज फार एज जनरल इंश्योरेंस इज कंसर्न, गुड्स के वैल्यू को लेकर, गुड्स कैसा है, कितना साल चलेगा, उसका एक्सपेक्टेड लाइफ कितनी है, उसके हिसाब से फिर उसका प्रीमियम डिसाइड होता है। तो प्रीमियम कोई मन से नहीं बताता इंश्योरेंस कंपनी, आदमी को देख के नहीं बताता है, हाँ गिरीश तुम 10,000 प्रीमियम भरो, राहुल सर तुम 12,000 भरो, ऐसा नहीं। तो कैलकुलेशन का एक बेस है, साइंटिफिक तरीका होता है, बरोबर है, एंड इसको गवर्नमेंट के हिसाब से कैलकुलेशन किया जाता है। गवर्नमेंट जो एक बोल सकते हैं ना, प्रीमियम कैलकुलेट करने का जो एक तरीका बताया है उसके हिसाब से जाना पड़ता है। लेकिन आपने वेजरिंग एग्रीमेंट में कभी ऐसा सुना है साइंटिफिकली कोई ऐसा कंसिडरेशन डिसाइड होता है? उधर जो मन में आया वो, है कि नहीं? चल शर्त लग गई 10,000 का, 10,000 कैसे कैलकुलेट किया हमने? मन में आया बोल दिया, वहाँ कोई साइंटिफिक तरीका नहीं है कैलकुलेशन का। तो देखो पॉइंट नंबर 6 में क्या लिखा है बच्चों, सॉरी, calculation of premium is based on scientific and actuarial calculation of risk. एक दिन बैठा था घर पे बेहोश हो गया। हेलो, हाँ बच्चे, तो एक्चुरियल कैलकुलेशन ऑफ रिस्क, ओके। मैं आपसे ऐसे ही पूछना चाहूंगा, कुछ बच्चों ने शायद पढ़ा हो अकाउंट्स वगैरह में, डू यू नो व्हाट इज एक्चुरियल? एनीवन, हैव यू हर्ड ऑफ सच टाइप ऑफ वर्ड एक्चुरियल? बच्चा आवाज आ रही है मेरी? एक्चुरियल कभी सुने थे नहीं बच्चे? अच्छा जाने दो।
बच्चों एक्चुरियल इज आप बोल सकते हो इट इज अ मेथड, एक प्रकार का इट इज मेथड डिसाइडेड स्पेशली फॉर कैलकुलेशन ऑफ रिस्क, साइंटिफिक मेथड डिजाइन फॉर कैलकुलेशन ऑफ रिस्क। ओके, इसके लिए स्पेशलाइज्ड कोर्स होता है, some people do specialized course, okay, as an actuarial। अभी आप गूगल वगैरह पे सर्च करेंगे तो आपको पूरी आइडिया आएगी इसमें। ओके, एनीवे एंड बच्चों वेजरिंग एग्रीमेंट में देखो क्या लिखा है, नो सच लॉजिकल कैलकुलेशंस आर रिक्वायर्ड इन केस ऑफ वेजरिंग एग्रीमेंट। अब शर्त लगाने के समय जो भी पैसा डिसाइड होता है क्या फर्क पड़ता है, जो मन में आता है इतना बोलते हैं लोग, है कि नहीं। लास्ट पॉइंट पब्लिक वेलफेयर। बच्चों आई थिंक यू विल एग्री विद द पॉइंट, कॉन्ट्रैक्ट ऑफ इंश्योरेंस आपको लगता नहीं इट प्रमोट्स पब्लिक वेलफेयर, इट इज फॉर टू सर्विस टू सर्व द सोसाइटी। आई थिंक यू विल एग्री विद दिस, स्पेशली अ कंट्री लाइक इंडिया जहाँ पॉपुलेशन बहुत जबरदस्त है एंड जहाँ आज भी ऐसी बहुत सारी फैमिलीज हैं जहाँ पे कमाने वाला एक ही व्यक्ति है बट डिपेंडेंट्स आर 4 to 5 पीपल। एंड सिचुएशन कभी कभी ऐसी होती है कि हेड ऑफ द फैमिली कमाने वाला अगर डेथ हो जाए तो बच्चों पूरी फैमिली पॉवर्टी लाइन के नीचे आ जाती है। एंड दैट इज द रीजन हमारी गवर्नमेंट लोगों को एक तरह से अपील करती रहती है कि प्लीज टेक लाइफ इंश्योरेंस, ताकि आपके बाद आपके फैमिली को इतना फाइनेंशियली सपोर्ट मिल जाए कि वो लोग आगे की जिंदगी अच्छे से काट सके। तो बच्चों कॉन्ट्रैक्ट ऑफ इंश्योरेंस बेसिकली देखा जाए तो इट प्रमोट्स पब्लिक वेलफेयर, इट इज बेनिफिशियल फॉर द सोसाइटी। ये समाज के लिए बहुत ही अच्छा व्यवस्था है, ऐसा हम बोल सकते हैं। पहले हमारे देखो ना इंडिया में लाइफ इंश्योरेंस कॉर्पोरेशन LIC नाम सुना ही होगा, केवल ये लाइफ इंश्योरेंस के बिजनेस करता था। बट जब गवर्नमेंट को पता चला कि लाइफ इंश्योरेंस LIC इंडिया में 50 साल हो गया फिर भी हर व्यक्ति के पास लाइफ इंश्योरेंस तक पहुंच नहीं पाया, एंड दैट इज द रीजन दे अलाउड इवन प्राइवेट कंपनीज टू डू लाइफ इंश्योरेंस बिजनेस। एंड आप आज इंडिया में आप देखेंगे 12 से 15 कंपनियां हैं अलॉन्ग विथ LIC जो लाइफ इंश्योरेंस एंड जनरल इंश्योरेंस की सर्विस देते हैं। आपने बहुत सारा नाम सुना होगा, बजाज अलियांस, मैक्स लाइफ, न्यूयॉर्क लाइफ इंश्योरेंस, है कि नहीं, बिरला सन लाइफ इंश्योरेंस, बहुत सारे आपको नाम नजर आएंगे प्राइवेट कंपनीज। बट बच्चों व्हाट अबाउट वेजरिंग एग्रीमेंट, आपको लगता है कि इट इज फॉर पब्लिक वेलफेयर? नो बच्चों, इट इज नॉट पब्लिक। मैं तो इनफैक्ट बोलूंगा कि इट इज अगेंस्ट पब्लिक पॉलिसी, है कि नहीं, गलत है ये बेटिंग करना, गैम्बल करना, बराबर है बच्चों, ये कहीं ना कहीं इट्स नॉट इंडियन कल्चर, so it never promotes any public welfare wagering agreements। so these are the special 7 points आप बोल सकते हो जो कॉन्ट्रैक्ट ऑफ इंश्योरेंस एंड वेजरिंग एग्रीमेंट को डिस्टिंग्विश करते हैं। बेसिकली कॉन्ट्रैक्ट ऑफ इंश्योरेंस इज बच्चों नथिंग बट एग्जांपल ऑफ कॉन्टिंजेंट कॉन्ट्रैक्ट। ट्राई टू अंडरस्टैंड, इज द एग्जांपल ऑफ कॉन्टिंजेंट कॉन्ट्रैक्ट। ओके, सो आई जस्ट गिव यू 30 सेकेंड्स। इस 7 पॉइंट्स में कोई डाउट है आपको? सर ये पॉइंट हमको नहीं समझा करके, आई होप सबको क्लियर है। ठीक, तो हम लोग आगे बढ़ते हैं बच्चों। तो बच्चों आपका यूनिट नंबर जो 3 है वो कंप्लीट हो गया है, समरी भी दिया है जो हमने अब तक पढ़ा। यूनिट नंबर 3 में बच्चों आपने ध्यान से देखा होगा तो बहुत सारे पॉइंट्स हमने कवर किए। व्हाट वाज द फर्स्ट पॉइंट? कॉम्पिटेंसी ऑफ पार्टीज, याद होगा तो कि हु आर द पर्सन्स हु आर कैपेबल ऑफ एंटरिंग इनटू एग्रीमेंट, याद होगा तो मेजर, पर्सन ऑफ साउंड माइंड एंड पर्सन्स हु आर नॉट डिस्क्वालिफाइड अंडर एक्ट। फिर उसके बाद हमने फिर नेक्स्ट डिस्कशन क्या किया? कंसर्न, फ्री कंसर्न,
when contract is caused by free consent, it is valid, and when it is not caused by free consent, it is voidable. उसमें हमने डिटेल में कोअर्शन, अनड्यू इन्फ्लुएंस, फ्रॉड, मिस रिप्रेजेंटेशन पढ़ा। फिर बच्चों हमने अनलॉफुल कंसिडरेशन, अनलॉफुल ऑब्जेक्ट पढ़ा, एन एग्रीमेंट सपोज टू पब्लिक पॉलिसी पढ़ी। ओके, एंड फाइनली टॉपिक को एंड करने के लिए बच्चों हमने वेजरिंग एग्रीमेंट्स एंड ऐसे बहुत सारे एग्रीमेंट्स पढ़े विच आर एक्सप्रेसली डिक्लेयर्ड एज वॉइड। तो जरा मैं बिफोर आई स्टार्ट विथ माय नेक्स्ट टॉपिक, बच्चों जरा इधर जरा एक बार ध्यान दें, बताओ कि इसको देखकर क्या लगता है, कुछ कॉन्फिडेंस बिल्टअप हुआ आपको कि इसको देखकर आपको समझ में आ रहा है कि यस हमें कुछ समझ में आया है। इसको देखकर एटलीस्ट हम कुछ लिख सकते हैं, बोल सकते हैं। 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11, क्या बोलते हो? इनको देखकर ही आपको समझ में आ रहा है कि कुछ ना कुछ तो हम लिख ही सकते हैं अभी। तो पॉइंट नंबर 10 जो बाकी था, वेजरिंग एग्रीमेंट सेक्शन 30, बच्चों वो भी हमने कंप्लीट कर दिया विद दिस पॉइंट, विद दिस डिस्टिंग्विश। एंड 11 पॉइंट मैंने ऑलरेडी कवर कर लिया था, यहाँ नोट्स में नहीं है, शायद आगे है, सेक्शन 56 आगे के टॉपिक में आएगा, बट मैंने फिर भी डिस्कशन कर दिया। इनिशियल इम्पॉसिबिलिटी, सुपरवीनिंग इम्पॉसिबिलिटी याद होगा तो, ओके, विथ वेरी गुड एग्जांपल्स विच यू ऑलरेडी रिमेंबर।